Welcome students. In this video we are going to learn about quadratic equation and its solutions by different methods. If you have not subscribed my channel yet, then subscribe my channel and press the bell icon for more educational videos. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें. So let's start. Objectives: write a quadratic equation in standard form and identify the values of a, b and c in a standard form quadratic equation. Use the quadratic formula to find all real solutions. Use factorization method to find roots of quadratic equation. Next, how to compute how to find discriminant and state number and types of solutions. Now definition. In mathematics, what is quadratic equation? It is a polynomial equation of the second degree. The general form of this, ax square plus bx plus c is equal to 0. So we have general form is this, ax square plus bx plus c equal to 0. Here a, coefficient of x square, b, coefficient of x and c constant term, and a not equal to 0. If we take a equal to 0, then you have bx plus c is equal to 0. It is a linear equation, not a quadratic equation. So we have general form with condition a not equal to 0, and quadratic equation, it has always degree 2. It has always degree 2. Now roots and zeros of quadratic equation. So polynomial of degree 2. Polynomial of degree 2 is, right, suppose we have px is equal to 2x square minus 4x plus 2. So here degree is 2 because highest power of the variable is 2. So it is a quadratic polynomial. If we put this polynomial as equal to 0, then it becomes equation. For example, next example, you can take this as 5x square minus 3x plus 3 is equal to 0. So this is an example of quadratic equation. Now roots or zeros. What are roots or zeros? As in linear equation, ax plus suppose we have linear equation 3x plus 4 is equal to 0, then we are able to find value of x. So x is equal to minus 4 by 3. Now this is a zero of the linear equation or solution of the equation. Similarly, if we have quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, then values of x which satisfy the given equation is our roots of the equation. Okay, suppose x is equal to alpha. Then when it is the root of the equation, when it satisfies the equation, it means a alpha square plus bx b alpha plus c is equal to 0. It means alpha satisfy the equation, therefore x equal to alpha. It is a solution. It is a solution of the equation, or you can say one of the root of the quadratic equation or 0 of the polynomial ax square plus bx plus c. Now we are taking another example. Suppose we are having equation x minus 2 whole square, x minus 1 whole square is equal to 2 into x minus 3. Now solve it. You know what is a minus b whole square? We use here x square x minus 1 whole square is equal to 2 into x minus 3. It is a quadratic equation after simplify, because in this equation we have degree 2.
So it is a quadratic equation. Now, what are the methods of solving quadratic equation? There are three ways to find the solutions. One is factorization method. By middle splitting term, you can factorize the given polynomial, or then you can, after that you can find the values of x. Next, we can compute the square or completing the square. Third is very important formula, quadratic formula. So second number, completing the square, is not in your syllabus. So in this video we learn only two methods, middle splitting method or factorization method. Second one, quadratic formula. So quadratic formula, it is very important formula. Or what is this? This is x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. Or here we have plus minus, because it has degree 2, there are two roots. बच्चों इसकी डिग्री 2 है तो इसके मैक्सिमम 2 रूट्स होंगे. वी से दिस टेक एज अल्फा एंड बीटा. सो अल्फा इज दिस और बीटा इज दिस. फर्स्ट वी टेक प्लस साइन, सेकंड वी टेक माइनस साइन. सो क्वाड्रेटिक फार्मूले से यू कैन ईजिली फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ एक्स वट एवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन. कोई भी बहुत डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट इक्वेशन भी दी हो तो भी आप ईजिली इस फार्मूले से सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, जब आप क्वाड्रेटिक मिडल स्प्लिटिंग टर्म से आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं. इन दिस क्वाड्रेटिक फार्मूले में बच्चों देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac आ रहा है. अब इसको हम एक स्पेशल नेम देंगे. देखिए द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इन द फार्मूला बी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, दिस इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेंट because it can discriminate between the possible types of answer. It can be denoted by d. So d is equal to b square minus 4ac. बच्चों ये याद होना चाहिए, b square minus 4ac. when b square minus 4ac, देखिए जब भी आपको कोई इक्वेशन दी हुई है फर्स्ट आपको ये चेक करना है आइदर इट इज़ क्वाड्रेटिक और नॉट. इफ़ इट इज़ क्वाड्रेटिक देन नेक्स्ट, अब जो भी इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक, ज़रूरी नहीं है उसके हर टाइम सॉल्यूशन हो. तो सॉल्यूशन देखना पड़ेगा कि आपको किस टाइप के सॉल्यूशंस हैं और उसका क्या मेथड है. सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें नेचर ऑफ रूट्स पता होने चाहिए. नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड्स ऑन डी. जो नेचर ऑफ रूट्स है वो किस पे डिपेंड करता है? डी पे डिपेंड करता है कि डी की क्या वैल्यू है. अगर डी पॉजिटिव है, अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, देखिए मैं एग्जांपल भी लूँगी, पहले हम देख लेते हैं कि डी की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती है. इट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीन तरह की वैल्यूज़ हो सकती हैं. पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. अगर पॉजिटिव है तो वी हैव टू रियल रूट्स, वी हैव टू रियल सॉल्यूशंस, क्योंकि अंडर रूट डी फार्मूले में देखिए रूट डी हो जाएगा आपका. तो यू नो स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज़ यू कैन फाइंड ओनली पॉजिटिव. अगर स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव, अगर स्क्वायर रूट आप डी पॉजिटिव होगा तभी आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट. सो डी इज पॉजिटिव देन यू हैव टू रियल सॉल्यूशंस. व्हेन इट इज़ जीरो you get just one real solution, both answers are same. when it is negative you get two complex solutions. ओके बच्चों, देखो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए. तो देखिए आप इसको अच्छे से टेबल को लर्न कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इसमें समझाया हुआ है. वैल्यू ऑफ डी, डी ग्रेटर देन जीरो, रियल एंड अनइक्वल, और रूट्स क्या हो जाएंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a. इफ़ डी इज़ इक्वल टू जीरो देन रियल एंड इक्वल, दोनों रूट्स की वैल्यू सेम आएगी. ईच रूट इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a. और डी लेस देन जीरो होगा, नो रियल रूट्स मीन्स कॉम्प्लेक्स रूट्स. तो आप कॉम्प्लेक्स रूट्स तो फाइंड आउट नहीं करेंगे, वो 11th क्लास में है. 10th क्लास में ओनली आपको रियल रूट्स ही फाइंड आउट करने हैं. तो नेचर ऑफ रूट्स आपको पता होना चाहिए. तो देखिए स्टूडेंट, जब भी कोई क्वेश्चन गिवन होता है तो सबसे पहले हम उसको ये चेक करते हैं कि क्वाड्रेटिक है या नहीं. इफ़ इट इज़ क्वाड्रेटिक देन वी फाइंड नेचर ऑफ रूट्स. नेचर ऑफ रूट्स में ये देखते हैं कि डी की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है. अगर वो पॉजिटिव है और जीरो है तभी हम रूट्स फाइंड आउट करते हैं, अदरवाइज नॉट.
देखिए हाउ टू यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब आप देखिए एक मैंने मेथड बताया मिडल स्प्लिटिंग, वो अभी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला सीखने के बाद बताएंगे। पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला सीखते हैं क्योंकि न्यू है। मिडल स्प्लिटिंग टर्म तो आपने सबने करी हुई है, उससे तो आपको पता है कैसे फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। जब फैक्टर्स आ जाएंगे तो एक्स की वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। लेकिन हाउ टू यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला ये न्यू है आपके लिए बच्चों। तो देखिए आप सबसे पहले आपकी इक्वेशन दी हुई है 5x² + 6x + 1 = 0। ये आपको इक्वेशन दी हुई है। इसमें सबसे पहले लिखिए a = 5 हो गया, b = 6 एंड c = 1। नाउ नेक्स्ट वी फाइंड, देखिए बच्चों इसमें हमने सबसे पहले d कैलकुलेट करके देखना है, b² - 4ac। तो देखिए d = b² - 4ac, तो b 6² - 4 × 5 × 1, तो देखिए 36 - 20, so this is equal to 16 and it is greater than 0, so we have real and unequal roots। अब ये greater than 0 होगी इसकी वैल्यू, तो d की जो वैल्यू आई है वो greater than 0 है, तो it means we have real and unequal roots। अब यू कैन यूज़ डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लीजिए। क्या फार्मूला होता है, x = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। तो b की वैल्यू क्या है 6, -6 ± √d की हमने कैलकुलेट कर ली है, तो ये 16 आ जाएगा आपका यहाँ पर। और जब हम √ कैलकुलेट करेंगे, √16 का क्या वैल्यू होगी 4। तो देखिए -6 ± 4 अपॉन 2a, तो 10 हो जाएगा, -6 + -4 अपॉन 10। बच्चों ये समझ आ गया आपको। नाउ व्हेन वी फाइंड आउट वैल्यूज़, तो देखिए एक बार हम प्लस साइन ले लेंगे, तो प्लस साइन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x = -6 + 4 अपॉन 10, so this is equal to -2/10, okay, -1/5, so x = -1/5। ठीक है बच्चों, एक रूट ये आ गया, और यू कैन राइट -0.2। नेक्स्ट वी टेक नेगेटिव साइन, तो x = -6 - 4 अपॉन 10, तो -10 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू -1। तो देयर आर टू रूट्स, -1/5 और -1। नो देखिए कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो हमारी वैल्यूज़ आई हैं वो सही है या नहीं। आप इनको चेक भी कर सकते हैं कि ये आपकी वैल्यूज़ जो है वो करेक्ट है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, x की पहले वैल्यू ले लीजिए -0.2 और इक्वेशन में पुट करिए जो आपको इक्वेशन दी हुई है। अगर उससे वो 0 आ जाता है =0, तो इट इज़ ए सॉल्यूशन, और इट इज़ ए सॉल्यूशन, इट मीन्स योर वैल्यू ऑफ x इज़ करेक्ट। नेक्स्ट वी टेक x = -1 एंड पुट इन द इक्वेशन। अब देखिए सॉल्यूशन के बाद =0 आ रहा है, इट मीन्स x = -1 इज आल्सो ए सॉल्यूशन। तो देयर आर टू सॉल्यूशंस, x = -0.2 और x = -1। तो दिस इज़ अ वे हाउ टू चेक योर आंसर इज़ राइट और रॉन्ग। अगर आंसर राइट होगा तो राइट हैंड साइड में चेक करने पर इक्वेशन के 0 ही आएगा जब वैल्यूज़ पुट कर लोगे। अगर रॉन्ग होगा तो 0 के इक्वल नहीं आएगा, तो इसका मतलब सॉल्यूशंस आपके करेक्ट है अगर 0 आ जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए इसमें आपको पॉलिनोमियल गिवन है। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें भी लिया हुआ है x² + 3x - 4, ये तो पॉलिनोमियल है, =0 कर दो। इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ यू वांट टू फाइंड आउट इट्स रूट। तो देखिए एक तो मेथड वही है जो अभी आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला किया, उससे भी कर सकते हो, और एक मेथड और है मिडल स्प्लिटिंग। आपको पता है हाउ टू फैक्टराइज, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो भी पॉलिनोमियल हम इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने का तरीका सबको मालूम है। देखिए इसमें a = 1 है, b = 3 और c = -4। a और c को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो -4। सो यू हैव टू चूज टू नंबर्स सच डैट व्हेन वी मल्टीप्लाई यू विल गेट -4, ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो यू विल गेट +3। तो देखिए इसमें आप कैसे करेंगे इसको, तो आपके पास जैसे x² प्लस, देखिए इसके पहले आप एक काम करिए, यहाँ पर एक -4 है, इसके आप फैक्टर लिख लो, 4 × -1 -1 × 4 2 × -2, ओके।
सो देखिए आपको चूज करने 2 नंबर सच दैट देयर प्रोडक्ट इज -4 एंड व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 2 नंबर्स प्लस और माइनस जो भी करें यू विल गेट +3। तो देखिए आप इसको देख लीजिए, ये वाला नंबर सही रहेगा 4 और -1, तो 4x - 4 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसमें से देखिए इसको आपको पता ही है, फर्स्ट 2 टर्म ले लीजिए और इसमें जो कॉमन है x इज कॉमन, सो x आउटसाइड हो जाएगा और ब्रैकेट में इनसाइड x + 4। नाउ फ्रॉम दिस 2 टर्म्स वी टेक -1 एज कॉमन, x + 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब ये क्या हो जाएगा आपके फैक्टर्स, x + 4 कॉमन है तो x - 1 और दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में x + 4 x - 1 इज है, तो आपको x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। हाउ टू फाइंड आउट वैल्यूज़ ऑफ x? अब मेन है कि x की वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करें। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x + 4 और x - 1 और राइट हैंड साइड 0। इट मीन्स कि जो आपके पास 2 ब्रैकेट्स हैं x + 4 और x - 1, इनको वी पुट इक्वल टू 0। तो x + 4 इज इक्वल टू 0 और x - 1 इक्वल टू 0। x + 4 इज इक्वल टू 0 और x - 1 is equal to 0. So you have x is equal to -4 or x is equal to 1. So these are the roots of the equation, x equal to -4 और x is equal to 1. So बच्चों ये पता लग गया मिडल स्प्लिटिंग से कैसे करते हैं क्वेश्चंस। We take more problems on this. For example ये ले लीजिए, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, x² - 2x - 15 is equal to 0। x² - 2x - 15 इज इक्वल टू 0। तो देखिए आपके पास x² - 2x - 15 इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए इसके -15 है और यहाँ 1 है, तो 1 × -15 -15 हो जाएगा। -15 के आपको फैक्टर्स लिखने हैं सच डैट कि उनको मल्टीप्लाई करें तो -15 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो यू विल गेट -2। तो देखिए यही 2 नंबर बन गए आपके, x² - 5x। तो आप प्लस जो बड़ा नंबर है ग्रेटर नंबर उसको माइनस का लेंगे और जो स्मॉलर नंबर है उसको पॉजिटिव ले लेंगे। तो देखिए x कॉमन ले लेंगे, x - 5, यहाँ से +3 कॉमन ले लीजिए, x - 5 इज इक्वल टू 0। सो x + 3 x - 5 दोनों में सेम है, तो x - 5 और x + 3 इज इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर्स हो गए इसके। अब देखिए ये यहाँ पर आ गया, अब इसकी x की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। हाउ टू फाइंड आउट वैल्यूज़ x तो हाउ टू फाइंड आउट वैल्यूज़, तो देखिए x - 5 इज इक्वल टू 0 और x + 3 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -3। सो दीज आर द रूट्स। ओके बच्चों, ये समझ आ गया आपको? ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन होगा। ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।